میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا. کیا آیا؟ زور سے بولو. نور آیا. اور روشن کتاب. اللہ نے نبی کو نور کہا اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو. کتاب. اور بولو قرآن کو کیا کہا؟ کتاب. اور اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو. نور. اس میں کیا حکمت ہے؟ میری طرف دیکھو. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کی آنکھوں میں بہت روشنی ہے مگر اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے. اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. زور سے بولو. کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. دن میں پڑھیں گے تو سورج کے روشنی کی ضرورت ہے اور رات میں پڑھیں گے تو لائٹ کی ضرورت ہے, چراغ کی ضرورت ہے, موم بتی کی ضرورت ہے. بغیر آپ اجالے کے کتاب نہیں پڑھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے, لیکن رب فرماتا ہے بندو میں نے تم کو قرآن دیا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا, صرف لائٹ جلا کر مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے عشق کی شمع جلا کر قرآن پڑھنا, میرے محبوب کے محبت کا چراغ جلا کر قرآن پڑھنا. قرآن پڑھتے بھی جاؤ گے, قرآن سمجھتے بھی جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ الہ آبادی. یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. شہزادہ رسول بھی آئیں گے, ان کی زیارت سے آپ کو مشرف ہونا ہے, لیکن پہلے آپ میری تقریر سنیں. ادھر دیکھیے, اللہ نے آپ کو آگاہ فرمایا اے بندو تم دنیا کی کتاب کو سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو, لیکن قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, ایمان کی روشنی میں پڑھنا. اور ایمان کی روشنی میرے محبوب کی محبت ہے. تم ان کی محبت کا چراغ چلاؤ, قرآن پڑھتے بھی جاؤ, قرآن سمجھتے بھی جاؤ. ادھر دیکھو, رب نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھنا ہوگا, اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا. ادھر دیکھیے, اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھنا ہے؟ زور سے بولو. رسول سے. اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے؟ زور سے بولو. قرآن سے. کسی بے ایمان سے نہیں سمجھنا ہے, کسی انگوٹھا چھاپ سے نہیں سمجھنا ہے. ادھر دیکھیے, عام مسلمان کے بچے ہو, اگر اپنے نبی کو پہچاننا چاہتے ہو, اپنے نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو کہ قرآن بتاؤ میرے نبی کیسے بشر تھے, تو قرآن آپ کو جواب دے گا نبی بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے, مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو, ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. ادھر دیکھو, رسول کو جو انعام دینا ہے تو ہاتھ میں نہیں پکڑانا. ارے بولو, آپ کو رکھنا ہے سامنے, ہاتھ میں پکڑاؤ گے تو میں تقریر کروں گا کہ آپ کا پیسہ وصولوں گا. ادھر دیکھو, زبان سے غلطی ہو سکتی ہے. ارے بولو, جب دماغ پیسے کی طرف جائے گا تو ذہن الجھے گا, زبان بہک سکتی ہے
तो ऐसी गलती ना करे कि जिससे बोलो मेरी जबान फिसले। इधर देखो, नबी को जो बशर ना माने वो काफिर है। हाथ उठाकर बोलो, जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है। नबी भी बशर है, नबी भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इधर देखो हम जैसे नहीं है, आपकी तरह नहीं है, अल्लाह के महबूब है। नबी को जो बशर ना माने वो काफिर, और नबी को जो नूर ना माने वो गुमराह है। जोर से बोलो, जो नूर ना माने वो गुमराह है। तो नबी बशर भी है, नूर भी है। इधर देखो, लेकिन हम जैसे नहीं है, हमारे और आपकी तरह नहीं है, अल्लाह के महबूब है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? अरे जोर से बोलो, ये लाइट जो जल रही है एक तार का कमाल है कि दो तार का? अगर गुवाहाटी के अंदर कोई ऐसा आदमी हो जो एक तार से लाइट जला दे, बोलो है कोई? ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, मिलाद शरीफ की खुशी मनाना, रोजा रखना, नियाज देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, झंडा झंडी लगाना, जुलूस निकालना, ये सब हदीस से साबित है या नहीं है? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात ये बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का हाथ पांव कैसा था, मेरे नबी की हाइट कैसी थी, मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी का पसीना कैसा था। ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मरना तो सबको है, मलकुल मौत सबके पास आएंगे। मेरे नबी की बारगाह में भी मलकुल मौत आए, लेकिन मलकुल मौत के आने का अंदाज नबी की बारगाह में कैसा था, किस अंदाज से मलकुल मौत नबी की बारगाह में आए। ये 7 बातें हो गई। 8वीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। हम गुलामों को देखते हैं कि नहीं, हम गुलामों की सुनते हैं कि नहीं। ये सिर्फ 8 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। जब तक आप सुनेंगे, सिर्फ हदीस सुनेंगे, आप माइक वाला मुझे डिस्टर्ब ना करें। जलसे की कामयाबी माइक पर है। मैंने इनको कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था सिर्फ आवाज आपको आपको सिर्फ इको नॉर्मल करना, आवाज जैसे थी वैसी ही फुल रखो, ताकि लोगों को पता चले मैं क्या बोल रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है और आप डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शेह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़िब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ए बाबू माइक वाले, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो ना, क्या है, चेंज मत करो बेटा, सब कुछ ठीक है, सिर्फ आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, इको नॉर्मल रखो। इको आपको नॉर्मल रखना है, बाकी आवाज सही रखनी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। और थोड़ी सी आवाज दो सब चारों तरफ, ताकि लोगों को आवाज सही मिले। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? हाँ जी। बोलो मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर सुनिए।
शायर लिखता है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और यह भी शेर सुनिए, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता। और यह भी शेर सुनिए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। गुवाहाटी के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई आपको बहका नहीं सकेगा। मौलाना आपका किस्सा कहानी नहीं, जब तक बोलेगा सिर्फ हदीस बोलेगा और हवाला देगा और गलत साबित करने पर इनाम भी देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब यह है, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बिल्कुल आप लोग अदब से बैठे। मैंने पंखे की हवा को बंद करवा दिया है क्योंकि नुकसान कर जाएगा। बोलो नुकसान कर जाएगा तो आप मुझे मेरे पसीने को नहीं देखेंगे, पसीना आने दीजिए, लेकिन हवा अगर लगनी भी है तो साइड से है, ये हल्की सी हवा लग सकती है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए, मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बोलो 615। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, जिसके मुंह में जितना पैसा है उतना मिलेगा। बड़ी मोतबर हदीस सुनिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को 3 रिवायत से बयान किया गया। एक रिवायत यह है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, कहां भेजा, जोर से बोलो, जन्नत से इस दुनिया में भेजा। गौर से सुनिए, बच्चे को बैठाइए। तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक, जोर से बोलो, 300 बरस तक रोते रहे, तब तौबा कबूल हुई। एक रिवायत यह है, मगर दूसरी रिवायत क्या है, गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं के निशान पड़ गए। 300 साल हो गए मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कितने साल हो गए, जोर से बोलो, 300 साल। तो तीसरी रिवायत यह है कि जब 300 साल हो गए, इधर देखिए, जब 300 साल हो गए तौबा कबूल नहीं हुई, तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, बहुत ज्यादा घबराहट हुई, दिल ही दिल में सोचने लगे कि 300 बरस हो गए, आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल नहीं कर रहा है। ये सोचकर और रोने लगे, गौर से सुनिए, और घबराने लगे, गौर से सुनिए। 300 साल तक रोते रहे, जब तौबा कबूल नहीं हुई तो और ज्यादा घबराने लगे। जब घबराने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ
आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप लोग भी कहो। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ। अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। मुझको भी हवाला। हजरत आदम, ऐ आदम ये बताओ, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, जिस्मानी सूरत में नहीं पैदा किया है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मैंने क्या देखा? अर्शे आज़म के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। या अल्लाह, मैंने नाम मोहम्मद को जब अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। ये अल्लाह, इन्हीं के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया उदऊनी बिहक्की क़द गफ़रतु लक। ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मोहम्मद मेरे महबूब है, मोहम्मद मेरे शहीद हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखो, मुसलमान बनकर रहना है। अभी आपने नूरे मुहम्मदी का जलवा देखा, सिर्फ एक हदीस सुनी, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? इधर देखो, अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अभी तो और भी तकरीरें करनी। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, आप बिल्कुल अदब से बैठे,
इजाजत दीजिए तो नूर मुहम्मदी का मैं जलवा दूसरी हदीस से सुनाना चाहता हूं। इजाजत है बाबू? तो सारा मजमा एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुंजदलुन फी तीनती व सअख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअत हीना वदअतनी व क़द खरज लहा नूर अदाअ लहा मिन्हु क़ुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। यह हदीस कहाँ है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 513। और जोर से बोलो 513। घबराइए नहीं, सिर्फ हदीस और मतलब सुनिए। इधर देखिए 513 पर मैंने जो हदीस है वो हदीस आप तक पहुंचाई, बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं कि नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के बीचों बीच थे। पानी और मिट्टी की मंजिल बोलो दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं कान खोलकर सुन लो, मैं इब्राहीम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था। और मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत जो उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद आखिरी पैगंबर आएगा जिनका नाम अहमद होगा। और मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी मां ने पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, औरतें जब बच्चा देती है तो किसको देखती है? जोर से बोलो, अपने बच्चा को देखती है। अरे बोलो, बच्चे पे नजर पड़ती है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी अम्मी ने मुझको नहीं देखा, मेरी अम्मी ने क्या देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। इस हदीस से पता चला, पूरे आसाम में आप ढूंढ लो, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो एक तार से इसमें रोशनी पैदा कर दे। तो गोया इसमें जो रोशनी देख रहे हो एक तार का कमाल नहीं है, 2 तार का कमाल है। जब आप समझ गए तो अब समझो अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नबी को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नबी से समझो। अच्छा, एक बात बताओ, फिर हदीस सुनाऊंगा। ये बताओ, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। और बोलो, आपने सुनी है कि नहीं हदीस? मैं भी सुनाऊंगा। इधर देखिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में। ऐसा क्यों? इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझिए।
आप जलसा कराते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, तो प्रोग्राम कराने का तरीका ये होता है कि जो अजीम हस्ती होती है उसको दावत सबसे पहले देते हैं, तारीख उनकी सबसे पहले लेते हैं, पोस्टर में नाम उनका सबसे पहले देते हैं, ऐलान सबसे पहले कराते हैं, मगर स्टेज पर लेकर आते हैं सबसे आखिरी में। क्यों लाते हैं? ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। देखो, तारीख लिया सबसे पहले, दावत दिया सबसे पहले, नाम पोस्टर में छपा सबसे पहले, ऐलान किया सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान और अजमत को पहचाने। अब उनसे पहले जितने उलमा आए सबने उसी अजीम हस्ती का जिक्र किया। घबराइए नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं आधा घंटा के लिए आया हूं, जिसका इंतजार है अनकरीब वो हस्ती आने वाली है। तो देखो, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया तो सबसे पहले, बोलो तारीख लिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, स्टेज पर लेकर आए सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तस्करा करे, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब का चर्चा करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है। लगता आप लोग नाराज हो गए। बोलो नाराज तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जलसे की कामयाबी 2 चीज है, मजमा और माइक, है कि नहीं? हम लोग पूरा भारत घूमते हैं, लेकिन अगर माइक की सेटिंग अगर सही नहीं तो कलेजा फट सकता है, और कलेजा फटने के साथ साथ मजमा भी हट सकता है। अरे बोलो हट सकता है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा कुछ मजा कम आए, आवाज में टेस्ट ना मिले, तो मौलाना रब्बानी का कसूर नहीं, किसी और का कसूर है। इसलिए राज को राज रहने दिया जाए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।